All right, good morning, students. Today we are going to learn History Chapter 5, Part 2, Mass Media and History. Our objective for today is students will be able to take notes on the history of magazines, radio, and television in India and answer questions on the same. तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम लोग नोट्स लेने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन इन इंडिया. पिछले क्लास में हमने न्यूज़पेपर्स के बारे में सीखा था, मास मीडिया के बारे में. राइट, रिमेंबर मास मीडिया इज़ व्हाट, जो मीडिया का जो भी साधन है, जो भी मीन्स है, वो सभी लोगों को यानी जनरल पब्लिक को पहुंचता है. तो आज हम कौन से साधन, कौन से मीन्स को देखने वाले हैं? मैगजीन्स, रेडियोज एंड टेलीविजन. ऑलराइट, मूविंग ऑन. So what are we learning today? We are learning about three different things. Okay, history of magazines and journals in India. Magazine और journal का इंडिया में कैसा हिस्ट्री रहा है. हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन इंडिया. इंडिया में रेडियो का क्या योगदान रहा है, रेडियो कैसे चलता था पहले. ऑलराइट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. एंड फाइनली हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन इन इंडिया. इंडिया में टेलीविजन कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, and what were the different types of programs that used to exist back then is what we are going to learn about in today's lecture. So students, keep a pen and notebook ready. If you have not got it ready, pause the video, go get yourself a pen and notebook. आज तुम्हें जो भी notes वीडियो में दिखेंगे वो तुम्हें सारे के सारे notes लिखने हैं. And using those notes you will also have to answer questions on the objective. Remember, आज हम जो भी पढ़ेंगे उस पर question answers भी करेंगे. Okay? So let's move on to the next topic. Now the first topic is history of magazines and journal in India. हम सब ने अपने अपने आसपास के सराउंडिंग्स में मैगजीन्स देखे होंगे. हमने फेमिना मैगजीन देखा होगा, हमने टाइम मैगजीन देखा होगा, हमने कार के रिलेटेड मैगजीन्स देखा होगा. ऑटो कार मैगजीन होता है. ऑलराइट, so magazines are basically just like newspapers, but they are books. Alright, and they are books that hold news, information, interviews, etc. Alright. Now, how was the history of magazines in India? Let's move on ahead to the first point. So, Bal Shastri Jambekar started the first monthly magazine in Marathi. It was named Digdarshan. All right. तो बाल शास्त्री जाम्बेकर, पिछले क्लास में ये नाम भी आया था because he had started a newspaper called Darpan in Mumbai. All right, Mumbai Darpan. So similarly, Bal Shastri Jambekar also started a monthly magazine in Marathi. All right, and it was named Digdarshan. Now, one thing about magazines, all right. Unlike newspapers which come daily to your house or are delivered daily, मैगजीन जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड में आता है, लंबे लंबे टाइम पीरियड में आता है. कभी कभी वीकली आता है, कभी बाई वीकली आता है, कभी मंथली आता है, कभी बाई मंथली आता है, कभी कभी तो क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में एक ही बार आता है. कुछ मैगजीन्स तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज वन स्पेशल फीचर ऑफ मैगजीन्स एंड जर्नल्स. एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड अ मैगजीन in Marathi? That was Bal Shastri Jambekar and he named it Digdarshan. Alright, दर्शन का मतलब चीज़ों को बताना. Alright, and Digdarshan मतलब लोगों के हिस्ट्री के बारे में चीज़ों को बताना. So Digdarshan का मतलब है लोगों के हिस्ट्री को सामने लाना, बताना. Okay, now प्रगति, now a defunct journal. देखो मैंने defunct को येलो कलर में रखा है. इसका मतलब ये है कि defunct यानी अभी बंद हो चुका है वो मैगजीन. It has been stopped or it has been dead. Okay, it is dead now. Was started in 1929 and edited by Triambak Shankar Shejwalkar. All right. So Pragati was another such a magazine जो अभी बंद हो चुकी है. Was started in 1929 and edited by Triambak Shankar Shejwalkar. All right. And he, इस मैगजीन में क्या लिखा जाता था? He wrote about Maharashtra's history and social movement. लोगों ने जो भी मोर्चे निकाले, प्रोटेस्ट निकाले, लोगों ने जब भी अपने हक के लिए लड़ाई की, वो सब कुछ त्रियंबक शंकर शेजवलकर के मैगजीन में आया था. राइट, मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल जर्नल्स इन इंडिया. राइट, तो और भी मराठी जर्नल्स हैं जिनका नाम है भारतीय इतिहास आणि संस्कृति यानी इंडियन कल्चर और हिस्ट्री एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका. तो मराठवाड़ा एरिया जो है महाराष्ट्र में, उसका इतिहास के ऊपर न्यूज़ लेटर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल जर्नल्स इन इंडिया. सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ जर्नल्स इन इंडिया. दिस नाउ स्पेसिफिकली स्पोक अबाउट मराठी जर्नल्स. वाई? बिकॉज we are studying in the state board of Maharashtra and obviously the state board textbooks will talk about the state history. लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स थे जो कोलकाता में भी शुरू हुए और बाकी सब जगहों पे भी शुरू हुए, जिसको तुम गूगल पे ढूंढ सकते हो, जिनके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक.
History of radio in India. Now this is very interesting because radio was one of the first few electronic methods in India. This radio was a audio method. It was an electronic method, but it was mostly audio. Okay, so Indian Broadcasting Company or IBC was a private radio company, was the first to broadcast daily news program. Broadcast का क्या मतलब वायर्स के थ्रू यार एक रेडियो सिग्नल के थ्रू वायर्स जो टावर से जुड़े हैं वो टावर फिर रेडियो सिग्नल भेजते हैं, तो रेडियो सिग्नल फिर हर तरह के रेडियो फ्रीक्वेंसी पे पहुंच सकता है. ऑलराइट, रेडियो पे तुम देखते हो ना नंबर होता है 94.7, 104.8, वो फ्रीक्वेंसी होते हैं. सो व्हेन यू tune into a particular frequency on a radio, you can receive the signal of a radio channel. All right, so IBC यानी Indian Broadcasting Company जो है was the first to broadcast daily news programs. ठीक है, it was the first one to broadcast daily news programs. तो वो IBC क्या करती थी, रेडियो पे न्यूज़ प्रोग्राम्स चलाती थी, and it was the first company doing that in India. It was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service. फिर क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया, बिकॉज बैक देन वी वर स्टिल रूल्ड बाय द ब्रिटिश. ओके, और फिर उसका नाम क्या हो गया, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, यानी हर एक स्टेट के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू किया गया. ओके, ऑन 8 जून 1936 इट वॉज रीनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो और एयर. ओके, एयर को याद रखोगे, इजी पड़ेगा. ऑल इंडिया रेडियो ऑन 8 जून 1936, वो ISBS नाम का जो कंपनी था जो ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था और कंट्रोल कर रहे थे, उसको एयर यानी ऑल इंडिया रेडियो में बदला गया. राइट, एंड व्हाट डिड एयर ब्रॉडकास्ट? एयर ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. एयर क्या करता था, गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम स्कीम थे वो सब ब्रॉडकास्ट करती थी. नाउ इट वॉज लेटर रीनेम्ड टू आकाशवाणी बाय पंडित नरेंद्र शर्मा. फिर से इसका नाम बदल गया, एयर से ऑल इंडिया रेडियो से बदलकर आकाशवाणी में बदल गया. क्यों? क्योंकि जब हम ऑल इंडिया रेडियो बोलते हैं तो सभी लोगों को पता नहीं था कि इसको कैसे एक्सेस करेंगे, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग उस समय पे इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो इसलिए इसका नाम आकाशवाणी में बदला गया ताकि सारे इंडियन लोग उन्हें पहचान सके और इस रेडियो चैनल को यूज़ कर सके. नाउ आकाशवाणी ब्रॉडकास्टेड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एज वेल एज प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, यूथ एंड चिल्ड्रन. आकाशवाणी उस समय पे रेडियो पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलाता था. कैसे? वो टॉक शोज जैसे होते हैं ना, वैसे प्रोग्राम चलाते थे. प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, यूथ एंड चिल्ड्रन के लिए जोक्स होते थे, गाने होते थे उस समय पे भी. राइट, एंड फाइनली इन ऑर्डर टू केटर टू द इंडियन पॉपुलेशन, द विविध भारती प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड इन वेरियस लैंग्वेजेस. विविध भारती जो है एक प्रोग्राम था जो शुरू किया गया आकाशवाणी रेडियो पे, जो बेसिकली नॉर्मल रेडियो प्रोग्राम ही है, टॉक शोज ही होते थे, गाने होते थे, लेकिन रीजन के हिसाब से, लैंग्वेजेस के हिसाब से होते थे. इसलिए विविध भारती यानी बहुत सारे प्रकार के भारतीय. राइट, सो दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन वेरियस लैंग्वेजेस ताकि सभी को अपने अपने लैंग्वेज में प्रोग्राम मिल सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र में हो तो मराठी में मिल सकता है, गुजरात में हो तो गुजराती में मिल सकता है, राजस्थान में हो तो एक अलग लैंग्वेज में मिल सकता है. राइट, सो दिस प्रोग्राम वाज देन स्टार्टेड एंड ब्रॉडकास्टेड इन वेरियस लैंग्वेजेस. ब्रॉडकास्टिंग का रिमेंबर मतलब क्या है, अलग एक रेडियो सिग्नल के थ्रू बहुत सारे लोगों को पहुंचना, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग. ओके, सो दिस वाज इन शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन इंडिया. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी का एक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर. इसमें ये सेंटर क्या करता है, दिस सेंटर सेंड्स द सिग्नल टू द डिफरेंट टावर्स विद द हेल्प ऑफ वायर, और फिर वो टावर एक वायरलेस सिग्नल भेजता है आसपास के रेडियो को पकड़ने के लिए. तो रेडियो में जब तुम उसको ट्यून करते हो, उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो उस बराबर के नंबर, चैनल के नंबर पे, देन यू विल गेट द ब्रॉडकास्टिंग मटीरियल. मतलब जो भी है, टॉक शो चल रहा है तो टॉक शो मिलेगा, गाने चल रहे हैं तो गाने मिलेंगे. ऑलराइट, मूविंग ऑन to the third and final topic, that's the history of television in India. Now, Doordarshan was the first television broadcasting service in India. It is run by the government of India. ये जो दूरदर्शन है, तुमने इसका लोगो देखा होगा टीवी पे. This is one of the oldest and one of the first channels which was started in India. Now, the Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president. तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने दिल्ली में पहले ये दूरदर्शन सेंटर खोला था. इनॉग्रेटेड का मतलब खोलना या शुरू करना. ओके, दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इस प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972. नाउ अभी हमने रेडियो के बारे में बात किया था, विच वॉज अ ऑडियो
सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन टेलीविजन जो है वो सिर्फ ऑडियो नहीं है, वो ऑडियो विजुअल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, ऑडियो विजुअल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, सो नाउ मुंबई में टेलीविज़न का जो टेलीकास्ट होने लग गया वो स्टार्टेड ऑन 1 मई इन 1972। पहले हम ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, अभी टेलीकास्ट क्या है? टेलीविज़न कास्टिंग। ओके, टेलीकम्युनिकेशंस कास्टिंग मतलब पहले रेडियो का सिग्नल में हमें ट्यून करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, लेकिन टेलीविज़न का सिग्नल अलग होता है, टेलीविज़न का केबल सिग्नल अलग होता है। सो दैट्स व्हाई दैट इज़ कॉल्ड टेलीकास्टिंग। ओके, दिस इज नॉट कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि ये कोई भी सिग्नल, इसको कोई भी नहीं पकड़ सकता। ये टेलीविज़न का सिग्नल एक रेडियो नहीं पकड़ सकता, लेकिन इसको सिर्फ टीवी पकड़ सकता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेलीकास्टिंग। ओके, नाउ कलर टेलीविज़न वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त इन 1982। कलर टेलीविज़न इंडिया में कब शुरू हुआ? 1982 में 15 अगस्त। एंड एट दैट पॉइंट आई रिमेंबर इंदिरा गांधी एट दैट टाइम वाज गिविंग अ स्पीच अबाउट द प्रोग्रेस इन टेलीविजन एंड टेलीकम्युनिकेशंस इन इंडिया। ओके, एंड फाइनली in 1991, the Indian government granted permission to private national and international channels to telecast in India. पहले क्या होता था इंडिया में? सिर्फ दूरदर्शन ये चैनल चलता था। ऑलराइट, सुबह में न्यूज़ होता था, आफ्टरनून में कुछ गाने होते थे या कुछ प्रोग्राम्स होते थे, एंटरटेनमेंट या एजुकेशन रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स होते थे। शाम को फिर कुछ गाने होते थे, कुछ प्रोग्राम्स के नाम है छाया गीत, एक और प्रोग्राम का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बॉलीवुड गाने इस मतलब इन प्रोग्राम में दिखाए जाते थे शाम को। और फिर सैटरडे संडेज़ को मूवीज़ आते थे। ऑलराइट, मूवीज़ ज़्यादातर हर बार ऐसे हर दिन दिखाए नहीं जाते थे। आज के चैनल्स के साथ कंपेयर करके तो गाने के लिए अलग चैनल होता है, मूवीज़ के लिए अलग चैनल होता है, न्यूज़ के लिए अलग चैनल होता है। लेकिन पहले इंडिया में क्या होता था? दूरदर्शन का ये एक ही चैनल होता था जिसमें सुबह में न्यूज़ आता था, दोपहर को प्रोग्राम्स आते थे, शाम को गाने आते थे, और फिर सैटरडे संडेज़ को मूवी आते थे। Alright, and that was the entire way the television used to function in India. लेकिन 1991 के बाद 1991 में what had happened? India as a country had liberalized its economy. उन्होंने इकोनॉमी को खोल दिया कि बाहर से लोग आके हमारे इकोनॉमी में काम कर सकते हैं, हमारे कंट्री में कंपनी सेटअप कर सकते हैं। सो सिमिलरली विद टेलीविज़न एज वेल, टेलीविज़न के भी इंडस्ट्री को खोल दिया गया। उन्होंने बोला कि अब भी बाहर के चैनल्स भी, बाहर के कंपनीज भी अपने अपने शोज़, अपने अपने टेलीविज़न की चीज़ें हमारे यहाँ पे चला सकते हैं। राइट, तो इसके वजह से क्या हुआ? नाउ वी हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल टेलीविजन शोज। नाउ यू माइट सी इन योर टीवी यू कैन गेट इंग्लिश न्यूज़, हिंदी न्यूज़, मराठी न्यूज़, रशियन न्यूज़, जर्मन न्यूज़। तो मैं जिस तरह का भी प्रोग्राम चाहिए, इंटरनेशनल नेशनल सब कुछ मिल जाता है। क्यों? बिकॉज इन 1991 द टेलीविजन इंडस्ट्री वॉज ओपनड इन इंडिया। राइट, and that brings us to the end of our lecture today, students. These are the 3 questions I want you to answer. First question is a fill in the blank with options वाला question. तुम्हें सही ऑप्शन चुन के, ब्रैकेट में ऑप्शन है, तुम्हें सही ऑप्शन चुन के आंसर करना। सेकंड वन इज क्रिएट अ वेब डायग्राम ऑफ 4 मैगजीन्स और जर्नल्स इन इंडिया। तो मैगजीन्स और जर्नल्स इन इंडिया एक बीच में सर्कल रहेगा और उसके साइड में 4 ब्रांचेस रहेंगे। तुम्हें 4 मैगजीन्स टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के उसका एक वेब डायग्राम बनाना है। एंड फाइनली दिस इज अ क्वेश्चन आउटसाइड द टेक्स्ट बुक। DD Science is a program broadcasted by दूरदर्शन. Find out information about it and write a short note on it. ये DD Science नाम का एक प्रोग्राम चलता है, आज भी दूरदर्शन पे चलता है, दूरदर्शन चैनल पे चलता है। I want you to find out information about it from Google and write a short note on it. Thank you so much for learning, students. This brings us to the end of our part 2 for chapter 5 of history. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. This is my first time recording on the phone, so I hope there were no issues. If there are any issues, please point it out and tell me over WhatsApp voice note. Alright. Thank you so much for learning and have a nice day, all of you.